میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, کھوپڑی کی ضرورت ہے. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا, موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں, فقہی مسائل, اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا, ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے, اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے, اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے, شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے, کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے, لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی, تو ٹماٹر اگاتا ہے, پیاز اگاتا ہے, تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی. شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی, لیکن جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گنوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی. نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے, سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے علماء بتائیں گے, رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے, جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو, میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت, اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہیں. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں, ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے, وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے, رکھا ہے, وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کے, اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے, اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے, وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتا جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے, جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا, وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا, وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے, بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں, اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا پھر یہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا ہو گیا یار, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو, اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی, جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں, اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی, اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو, اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر وظر کیا ہوتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی, اور جو کرتے کرتے
आदी हो चुके हैं, उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क। अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये। तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो छुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस्थ नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसा ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी ख्वाहिश को, वक्ती नुकसान होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये ठड़क पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने आप को इस तरह एक दफा किया तो फिर एक दफा नहीं होगा, फिर 2 दफा होगा, फिर 3 दफा होगा, फिर बार बार ये ठड़क खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये नशे की तरह है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टेंशन में था, आपने उसको थोड़ी शराब पिला दी कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिलैक्स थोड़ी होगा, अब दोबारा टेंशन में आएगा और जल्दी आएगा टेंशन में। पहले तो टाइम के बाद आ रहा था, अब जल्दी आएगा टेंशन में। अब फिर 1 घूंट पिया, 2 घूंट पिएगा, फिर 1 बोतल पे आएगा, फिर 2 बोतल पे आएगा, फिर वो बन जाएगा शराबी। तो इसलिए जो अल्लाह रसूल ने कहा है ना, वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए एक ही ऑप्शन रखा है भाई, निकाह करो। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? बीवी को पैदा किया, बस। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बीवी है तुम्हारे लिए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवी के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, फउलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। और एक और अखलाकी नुकसान इसका क्या होता है, देखो फितरत कभी भी धांधली नहीं करती। ये जो लोग खुदा को नहीं मानते, नेचर को तो मानते हैं ना। अरे जो खुदा को नहीं मानते वो नेचर को तो मानते हैं ना, कि कायनात में एक नज़म है, रब्त है, जिसको वो नेचर से, मैं आ रहा हूं अपने असल टॉपिक की तरफ, ये दरमियान में बात आ गई, तो वो नेचर को तो मानते हैं कि नहीं मानते? तो मुझे आप बताओ, आज तक नेचर ने कभी गलती की है? जो चीज नेचुरल है वो कभी गलत हो सकती है? बालिग होते ही अल्लाह आपके अंदर बेपनाह शहवत रख देता है। क्यों? फितरत ये चाहती है कि अब मर्द और औरत का मिलाप होना चाहिए। आप ना चाहते हुए भी शादी करो, आप, कुदरत ये चाह रही है। और आप चाहो ना चाहो आपके औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि कुदरत क्या चाह रही है? जमीन को इंसानों से भरना चाह रही है। ये जो नस्ल बढ़ाना है या मर्द और औरत का मिलाप है, ये कुदरत ने इंसान की राय पे नहीं रखा, बल्कि इंसान पर यह मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी करना वही पड़ेगा जो खुदा चाहता है, जो नेचर चाहती है। मिसाल के तौर पर हम जो पानी पीते हैं, क्या हम अपनी राय से पीते हैं पानी? भाई प्यास लग जाती है ना, हमें कुदरत प्यास लगा देती है। पानी कितना पीना है ये कुदरत ने हमें हमारी राय पे नहीं छोड़ा, वरना डॉक्टरों में इख्तलाफ हो जाता। कुछ डॉक्टर कहते 10 गिलास पीना है, कुछ कहते 5 गिलास पीना है, कोई पीना ही नहीं है। तो पता चला 25-30 करोड़ लोग तजर्बे की भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं प्यास से। कुदरत ने जो इंतहाई जरूरी चीजें थी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी थी, कुदरत ने कहा साइंस तो तरक्की करेगी, पता नहीं करोड़ों साल के बाद, लाखों साल के बाद जाके, और कुछ चीजों की जरूरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसान को जरूरी रही है वो। तो वो डॉक्टरों की, हकीमों की तहकीक पे ना रखो, बॉडी खुद बताएगी कि भाई मुझे भूख लग रही है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर हकीम से पूछें खाना खाने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? जब भूख लगे, यही टाइम है ना। सारे डॉक्टर हकीम कहते हैं बगैर भूख के जो खाना खाया जा रहा है इससे मोटापा आ रहा है, बर्बादी आ रही है, भूख लगे तो खाओ, यही कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब डॉक्टर जो बात कह रहा है, आपका मैदा भी वही बात कह रहा है, वो आपको डॉक्टर से पहले बता देगा। बल्कि डॉक्टर को भी जब भूख लगती है ना, तो तहकीक से पहले खाना खाता है, फिर कहता है कि आप बताओ खाना सेहत के लिए जरूरी है या नहीं है। ये फितरत मुसल्लत कर देती है, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं उनको मुसल्लत कर देती है, ताकि आप उनमें किसी से मशवरा ना लें। आपकी बॉडी की नीड बन जाती है वो। प्यास भी ऐसा ही है। तो जैसे भूख आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उसको अगर आप डिले करोगे तो बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान होगा। अब मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, माहिरीन आए, फैमिली प्लानिंग वाले आए, वो कहें कि एक्चुअली जितनी प्यास लोगों को लग रही है, अगर उतना पानी पी लिया जाए तो दुनिया में पानी के ज़खायर कम हो जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, तो मानोगे उनकी बात? बोलो ना, क्या हो गया? आप बोलोगे भाड़ में जाए, ज़खायर कम हो या ज्यादा, मुझे प्यास, तेरी तहकीक पता नहीं कल गलत साबित होगी, मैं तो आधा पानी की कमी से मर जाऊंगा। मैं पानी के ज़खायर गए तेल लेने, पानी चाहिए मुझे, पानी, प्यास लग रही है। कोई फैमिली प्लानिंग वाला है कि ऐसे असल में कैलकुलेशन की है यूरोप के बड़े बड़े साइंसदानों ने कि इस वक्त गंदम और मकई और ये सब चीजों के ज़खायर कम हो रहे हैं, लिहाजा आप खाना जब भूख लगे तो ना खाएं आप, या आप ऐसा करें कि गुब्बारे खा के पेट भर लें, यानी नेचुरल तरीका ना हो, कोई और तरीके से वो रुई खा लें या कुछ भी खा लें। अब मानोगे उसकी बात? बोलेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, पेट भरना है भाई हमने, ये कुदरत को पता है कि कितनी रोटियां पैदा करनी है, कितने, जब उसने भूख लगाई है तो इंतजाम किया होगा ना, वरना तो ये निजाम ही गलत है सारा। तो याद रखो, जैसे भूख लगना बॉडी की रिक्वायरमेंट है,
प्यास लगना बॉडी की, तो ऐसे ही जो जिस्म में सेक्स की एक ख्वाहिश पैदा होती है, ये भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये हिंदू को भी होगी, मुस्लिम को भी होगी, ईसाई को भी होगी, हजरत जी को भी होगी, मुफ्ती साहब को भी होगी, एक चोर को भी होगी। इसमें बुजुर्ग बाद में होते हैं, मुफ्ती साहब आदमी क्या होते हैं? बोलो ना पहले होते हैं। ये हर आदमी का है, ये बॉडी की है, बॉडी की नीड है। तो जब खुदा ने आपकी भूख लगाई तो रोटी का इंतजाम किया उसने ना, बारिशें बरसा के नबातात पैदा करके। तो मर्द को जब अल्लाह ने शहवत की भूख लगाई तो उसके लिए औरत का इंतजाम अल्लाह ने किया। औरत को जब शहवत की भूख लगी तो उसके लिए मर्द का इंतजाम खुदा ने किया। अब ये दोनों का मिलाप होगा और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बच्चे पैदा होंगे। इनमें किसी भी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की तो फैमिली प्लानिंग वाले तो खुश हो जाएंगे, इंसानियत का भी बेड़ा गर्क होगा और खुदा भी नाराज होगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? क्योंकि इसका मतलब है खुदा का निजाम ही गलत है। फिर अब जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो खुदा को, उस निजाम को क्या कर देते हैं? खलल पैदा। तो खुदा ने ख्वाहिश रखी थी ताकि तुम ना चाहते हुए, अब देखो जो आदमी साइंसदान है, पढ़ाई वाला टाइम नहीं है उसके पास, एक्चुअली मुल्क में तरक्की और ये वो, भूख लग रही है, खा नहीं रहा, नतीजा क्या निकलेगा? वो मजबूर होके खाएगा, यार खा के पेट भरो ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो लगाऊं, यही करेगा ना वो। अगर उसकी राय पे रख देते तो वो कहता कि 6 महीने बाद इकट्ठी एक टीका लगा दूंगा ताकि मेरी जो कमी हुई है ना पूरी हो जाए, यही करेगा ना वो। खाएगा वो कहेगा नहीं यार ये खाना जरूरी है, क्यों भाई? ताकि मेरा दिमाग उधर लगे पढ़ाई में, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। तो बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बालिग होता है, औरत बालिग होती है, तो उसमें अल्लाह ने ये डिजायर्स पैदा कर दिए हैं। अब उन डिजायर्स का तरीका ये है कि जो फितरी नेचुरल तरीका अल्लाह ने जानवरों में रखा है वो इंसानों में रखा है कि नर और मादा का मिलाप हो। ये मिलाप आपके ना चाहते हुए भी क्या होगा? ये करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका दिमाग क्या हो, स्ट्रेस आपकी, बोलो ना, खत्म हो, और फिर नतीजे में औलाद आपके होगी। क्योंकि कुदरत इसके जरिए कुछ और काम ले रही है। वो क्या है कि कुदरत नस्ल बढ़ाना चाहती है, इसलिए कि आपने मरना है आगे चल के, नई नस्ल ने आना है। अगर आप ही हमेशा रहते हैं ना इस दुनिया में, आज जब आबादी की बात होती है ना तो ये ऐसे शो किया जाता है जैसे ये आबादी हमेशा रहेगी। भाई ये तो सारे मर जाएंगे कल जाके, बुढ़े और आहिस्ता आहिस्ता सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो नई नस्ल आएगी। तो ये सब चीजें कुदरत ने आपके इख्तियार में नहीं रखी। अगर आप इसमें दखल अंदाजी करोगे तो आपकी सोसाइटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि कुदरत मर्द और औरत के मिलाप से कुछ हिकमतें हासिल करना चाहती है। तो वो अल्लाह ने मर्द और औरत पे नहीं रखा है, वो ऐसा मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी होगा। तो अगर आप जिना की तरफ जाओगे या आप हाथ से ख्वाहिशात पूरी करोगे तो कुदरत का वो निजाम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, वो खराब जैसे कि हो रहा है। लड़कियां घरों में बैठी बैठी बुढ़ियां हो रही हैं और लड़के ये काम कर रहे हैं बैठ के, उनकी ख्वाहिश यहां से पूरी हो रही है तो वो शादी कहां करेंगे? वो भी डिप्रेशन में जा रही हैं, ये भी डिप्रेशन में जा रहा है। एक सारा सत्यानाश कर दिया पूरे निजाम का। तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, निकाह करो। और तवक्कुल किस पे करो? जैसे भूख लग रही होती है तो खाने का इंतजाम किया जाता है, और तवक्कुल किस पे किया जाता है? अल्लाह पे, कि यार खाना तो खाना ही है। आपके पास पैसे हैं, आपने कहा 2 रोटी खा ली तो यार ये तो खर्च हो जाएंगे, कल क्या करूंगा? अबे भाई तू खा पहले इसको, कल की कल देखी जाएगी, ये जरूरी खर्चे हैं। तो निकाह भी क्या है? जरूरी है, ये तो करना ही करना है। पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है, ये तो करना ही करना है। समझ में नहीं आ रही तो रहने दो, जैसे चल लो ठीक है, फिर सही है। और मैं आखिर में एक बात कहता हूं, मुझे पता है नौजवानों को जब इसकी आदत पड़ती है तो ये गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूं। जिनको लत पड़ी है ना इसकी, वो आसानी से नहीं छूटता। तो भाई कोशिश तो करो ना छोड़ने की, जब हो जाए तौबा करो, कुछ सदका खैरात करो। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप तौबा करते रहे, गुनाह छोड़ने की कोशिश करते रहे, तो खत्म नहीं भी हुआ ना, कम से कम वहीं रुक जाओगे आप। अगर तौबा नहीं की, छोड़ने की कोशिश नहीं की, तो जो ये काम करते हैं अगला स्टेप उनका इससे आगे होता है। फिर यहां रुकते नहीं है, खूब समझ लो। डॉक्टरों की खुशफहमी है कि लड़कों को इस काम पे लगा दिया और वो समझे कि यही होगा, ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब। जब वो ये करेगा तो अगला स्टेप उससे, बोलो ना, आगे का होगा। क्योंकि ख्वाहिशात पूरी करने की जब गलत तरीके से आदत पड़ती है, फिर इंसान नई सी नई लज्जतों की तरफ जाता है कि और कुछ करो और कुछ करो। तो ये जो यूरोप जिस इंतहा पे पहुंचा हुआ है ना कि लड़कों से बदफेली, वहां तो सब कुछ आम था, तो उनको तो जरूरत ही नहीं थी लड़कों से बदफेली की। तो ये इसी वजह से तो पहुंचा है कि उनके डॉक्टरों ने प्रमोट किया इन चीजों को। तो इसलिए डॉक्टर की बात जरूर सुना करें, हम कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की बातें डॉक्टरों से ही पूछी जाएंगी। जब मोइन अख्तर ने से पूछा था कि मामू क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मामू की बातें किससे पूछी जाएंगी? मामू से। तो इसी तरह डॉक्टरों की बातें डॉक्टरों से ही, लेकिन कुछ चीजें 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह होती हैं।